منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ، گجرانوالہ ریجن میں CCD ٹیموں کی کریک ڈاؤن، مبینہ مقابلے میں 8 منشیات فروش ہلاک۔ ترجمان CCD کے مطابق 3 ملزم ضلع منڈی بہاؤالدین اور 2 زیر گجرات میں اپنے انجام کو پہنچے۔ گجرانوالہ، حافظ آباد اور سیالکوٹ میں ایک منشیات فروش مارا گیا۔ ترجمان CCD کہتے ہیں کہ منشیات فروش کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول 2 روپے سستا، نئی قیمت 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 79 پیسے کمی، ڈیزل کی نئی قیمت 279 روپے 65 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر غور، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تبدیلی کی خبریں بھی زیر گردش۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر 2 ماہ کے لیے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے، بعد میں ضرورت پڑنے پر اسے مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک آئینی اقدام ہوگا جو ضرورت کے تحت اٹھایا جائے گا۔ اس کی وجہ صوبے میں عسکریت پسندی اور سرحدوں کی صورتحال ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی مرکز کے ساتھ کسی قسم کا تال میل یا ہم آہنگی نہیں چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حالات خود ایسا قدم اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ادھر ذرائع کے مطابق نئے گورنر خیبر پختونخوا کے لیے 5 نام زیر غور ہیں۔ امیر حیدر ہوتی، پرویز خٹک اور آفتاب شیرپاؤ کے نام شامل۔ نئے گورنر کے لیے 2 ریٹائرڈ افسران کے نام بھی زیر گردش۔ فیصل کریم کنڈی کا صوبے میں گورنر راج اور گورنر کی تبدیلی سے متعلق لا علمی کا اظہار۔ کو تقریباً 4 نومبر سے اب تک جو ہیں وہ آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، نہ ان کی بہنوں کی ان سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، نہ وکلاء کی۔ تمام پارلیمنٹیرین MPs MNAs اور سینیٹرز، یہ باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے۔ اس NFC پر خیبر پختونخوا کی عوام، خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا موقف ایک ہی ہو۔ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم تصادم کی طرف جائیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پشاور میں نیوز کانفرنس، کہا کہ بانی PTI کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ اڈیالہ کے باہر دھرنا دینا میرا اپنا فیصلہ تھا، بانی PTI سے نہ ملنے دینا ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ منگل کو PTI کے تمام پارلیمنٹیرینز اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کریں گے، کیسز جلد سننے کی استدعا کریں گے۔ 92 نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی شفیع جان نے کہا، حکومت نے ہمیشہ غیر آئینی کام کیا، گورنر راج لگانے کا شوق بھی پورا کر لیں، پھر جو ہوا اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے جعلی مینڈیٹ تیار کیا گیا، لوگوں کو خرید کر 2/3 اکثریت بنائی گئی، ضرورت پڑی تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کے سیاسی حریفوں پر وار۔ مردان میں تقریب سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عوام کے بجائے بڑے لوگوں کی خواہش پر آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، عوام کی خواہشات پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ بانی PTI سے گلا تھا لیکن موجودہ حکمرانوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، پچھلی حکومتوں کے خلاف تحریک چلائی، اب بھی چلائیں گے۔ معیشت تباہ ہو چکی، آج آئین کو کھلونا بنا دیا گیا۔ امریکہ میں ٹک ٹاک ویڈیو میں بم بنانے کا نسخہ بتانے والے افغان شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق گرفتار ہونے والے افغان کی شناخت محمد داؤد کے نام سے ہوئی۔ افغان شہری نے بم بنانے سے متعلق ٹک ٹاک پر ویڈیو پوسٹ کی۔ ویڈیو میں کہا تھا وہ اس بم سے فورٹ ورتھ شہر کو نشانہ بنائے گا۔ ملزم 2021 میں امریکی انخلا کے بعد امریکہ آیا تھا، 2022 میں اسے امریکی گرین کارڈ بھی دیا گیا تھا۔ امریکی صدر نے افغان شہری محمد داؤد کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔
अफगान शहरी अमेरिका में संगीन जुराइम में मुलव्वस निकले। अमेरिकी महकमा होम लैंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट जारी। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक अफगान शहरी दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए। अफगानियों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग के वाक़यात भी सामने आए। अमेरिकी महकमा होम लैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जुराइम पेशा अफराद को वापस उनके वतन भेजा जाएगा। तारकीन वतन के जुराइम की जिम्मेदार जो बाइडन हुकूमत को करार दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिए। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर भी ज़ेर गौर आए। इसहाक डार ने ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान से होने वाले हमले में 3 चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया। मुल्की मैशत दुरुस्त समत में गामजन। बरामदात में 5% इजाफा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी खुशाइंद है। ग्रोथ का तसलसल बरकरार रखना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत ज़रूरी है। पायदार तरक्की के लिए अदायगी का तवाज़ुन और करंट अकाउंट बहुत अहम है। मुल्क को प्राइवेट सेक्टर लीड करेगा। कराची के इलाके मलीर में MQM का जलसा। फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत से 5000 अरब रुपए का हिसाब मांग लिया। विफाक से कराची के इंतजाम संभालने का मुतालबा भी कर डाला। कहा कि जागीरदाराना निज़ाम मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। सिंध इंतजामी बुनियादों पर तकसीम हो सकता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कराची की एक पाई भी कहीं नहीं जाने देंगे। ये शहर जागेगा तो पूरा मुल्क जागेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी का फैसला। मुआवने ख़सूसी बराए इत्तलात KP शफ़ी जान का कहना है कि सुहेल आफरीदी ने NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी को इंक्वायरी का इख्तियार दे दिया। ज़िमनी इलेक्शन में क्लास 4 से डिप्टी कमिश्नर तक की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। धांधली में मुलव्वस एहलकार या अफसर के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। सूबाई हुकूमत के मातहत मुलाजमीन और अफसरान धांधली में मुलव्वस नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हल्फी कलमबंद किए जा रहे हैं। इसराइल की जंग बंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। गजा के इलाके रफा और खान यूनस में इजरायली हमले। 4 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज जंग बंदी के बाद से 354 अफराद को शहीद कर चुकी। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक शहदा की मजमूई तादाद 70,100 से तजावुज कर गई। 1,70,983 अफराद जख्मी हुए। उधर इसराइल ने गजा के लिए नए मंसूबे का खाका जारी कर दिया। फलस्तीनियों को इसराइली फौज के जेर कंट्रोल इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा। मिस्र ने गजा में सिक्योरिटी निज़ाम के लिए सैकड़ों फलस्तीनी पुलिस एहलकारों को तरबियत देना शुरू कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म करप्शन केसेस में मुआफ़ियाँ मांगने लगे। नेतन्याहू ने केसेस में मुआफ़ी के लिए इसराइली सदर को ख़त लिख दिया। अमरीकी सदर ने भी इसराइली सदर से नेतन्याहू को मुआफ़ करने की सिफारिश की थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू करप्शन के 3 केसेस का सामना कर रहे हैं। वेनेज़ुएला पर अमरीकी जंग का खतरा मंडलाने लगा। वेनेज़ुएला ने मुमकिन अमरीकी हमले के खदशे के पेश नज़र दिफाई तैयारियों में इजाफा कर दिया। हुकूमत ने गोरीला तर्ज की मज़ाहमत और हंगामा खेसी की नई हिकमत अमली तैयार कर ली। फौजी यूनिट्स मुल्क भर के 280 खुफिया मकामात पर तैनात किए जाएंगे। खुफिया इदारे और मुसल्लह हुकूमती कारकुन दारुल हुकूमत में अफरा तफरी फैलाकर शहर को गैर मुल्की अफवाज के लिए नाकाबिले तस्खीर बनाने की कोशिश करेंगे। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबे बराह रास्त लड़ाई में ज्यादा मौसर नहीं होंगे। अमेरिका हमारे तेल के वसी ज़खायर पर फौजी ताकत के जरिए कब्जा करना चाहता है। वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो का ओपेक को लिखा खत मंजर आम पर आ गया। खत ओपेक के सेक्रेटरी जनरल और रुकन ममालिक को भेजा गया था। खत में कहा गया कि अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो आलमी तवानाई मंडी पर गहरे असरात पड़ेंगे। इस वक्त मुल्क की तेल की पैदावार तकरीबन 11 लाख बैरल यौमिया है, जो 1990 की दहाई के उरूज के मुकाबले में 1/3 से भी कम है। हालिया महीनों में इसकी 80% से ज़ायद बरामदात चीन को भेजी गई।
किर्गिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात के इब्तदाई नताइज जारी। सदर जपारोफ के हामी कामयाब, तकरीबन तमाम नशिस्तें जीत ली। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़्यादातर उम्मीदवार वही आज़ाद शख्सियात थी जो जपारोफ के वफादार समझी जाती हैं। 2020 में इक़्तिदार संभालने के बाद से जपारोफ ने सियासी जमातों को पस मंज़र में धकेल दिया था। जपारोफ के लिए 2027 में दूसरी 6 साला सदारती मुद्दत का रास्ता हमवार हो गया। पारा चनार के इलाके बस्ती कुरम में फितनाल खवारिज का चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 अहलकार शहीद हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद पुलिस अहलकारों की कुर्बानी को खराज अकीदत, कहा कि पुलिस अहलकारों की बहादुरी पर फख्र है। कराची में केमाड़ी के करीब समुंदर में 2 मुसाफिर लॉन्चर में तसादुम। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लॉन्च में सवार मुसाफिर समुंदर में डूब गए। लॉन्च में 20 से 25 अफराद सवार थे। हादसे में 2 खवातीन जान बहक हो गईं। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत कम तरीन सतह पर पहुंच गई। गैलप सर्वे के मुताबिक ट्रंप मुद्दत सदारत के 10 माह बाद ही 30% के साथ मकबूलियत की कम तरीन सतह पर हैं। 60% अवाम ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन निकले। एशिया में तबाहकुन सैलाब, 800 से ज़ायद जिंदगियां निगल गया। मुतादिद मुमालिक में सैलाब से हजारों घर तबाह, सैकड़ों अफराद लापता। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में शदीद बारिशों से निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम। इंडोनेशिया में सैलाब से हलाकतों की तादाद 435 तक जा पहुंची। श्रीलंका में 334 और थाईलैंड में 162 अफराद हलाक हुए। मुतासरा शहरों में घर और दुकानें ताहाल ज़ेरे आब। समुद्री तूफान आज भारत के साहली इलाकों से भी टकरा गया। रियासत तमिलनाडु में शदीद बारिशों और दीवार गिरने से 3 अफराद हलाक। मगरबी अमरीका बर्फानी तूफान की लपेट में आ गया। अमरीकी शहर ग्रैंड रैपिड ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। शदीद बर्फबारी के बाद शिकागो की 2 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। हजारों परवासें मनसूख। मुसाफिरों को घरों में रहने की हिदायत। मगरबी अमरीकी की रियासतों में मंगल तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। चीन ने जनूबी सूबे हेनान के वैनचोंग लॉन्च सेंटर से नया सैटेलाइट कामयाबी से खला में भेज दिया। शिजियान 28 नामी ये सैटेलाइट मुकर्ररा मदार में दाखिल हो गया। ये लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 611वां मिशन था जिसने चीन के खलाई प्रोग्राम में एक और अहम संगे मील का इजाफा किया।